Hi guys, welcome back. So today we'll be discussing our unit 4 contingent asset and contingent liability. And after this, I think we will have 1-2 units, very small. We can take that short. We can discuss shortly on that and conclude those unit as well. So I think by this lecture, I think we can conclude the first chapter called theoretic of number, guys. So, but before discussion of this unit, as usual, we will have certain general discussion. Then we can jump into the unit. Yeah, guys. So this is the unit 4. Yeah, guys. Uh, the word contingent, and yeah, before this starting, I think one more thing what I want to say here is अभी तक अपन जितने भी चीज़ें डिस्कस करें guys, all the chapters starting from the accounting concept, principle, conventions, meaning of accounting we discussed. Then I think we discuss all the accounting concepts. Then we move to something called capital and revenue expenditure or capital and revenue receipt. ये सब chapter when you see guys, मतलब ये सब unit when you see guys, ये बहुत चीज़ें थे जो पास्ट की चीज़ों पे बात कर रहे थे. So this all the unit were focusing on the past things and past बीते हुए चीज़ों पर ही how to deal with that we were discussing there. बट ये यूनिट इज एक्चुअली कंसिडरिंग सर्टेन थिंग्स फॉर फ्यूचर एज वेल. तो फ्यूचर के अंदर थोड़ी चीज़ें कैसे होने जाते हैं उसके हिसाब से अभी अकाउंटिंग कैसी होगी ये यूनिट कंसिडर करेगा गाइस. एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यूनिट बिकॉज दिस कंटीजेंट असेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी समथिंग यू आर इट इज देयर अगेन इन सी इंटर एंड सी एफ फाइनल. बिकॉज यहाँ पर उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है एंड जस्ट उसका डेफिनेशन का मीनिंग समझा दिया जा रहा है. बट एट दिस लेवल मेनी विल नॉट गिव दैट इंपॉर्टेंस टू दिस यूनिट. बट if you are having अभी की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी ग्रुप से बनी you will be enjoying when we're discussing the same topic at inter or the final. ठीक है guys. So when you see the word, this word something called contingent, right? So guys, this contingent word, did we hearing first time? Are we hearing this as a first time? Yeah, already kind this hear करे तो भी what could be the meaning, general meaning of this contingent? जनरल सेंस का मीनिंग क्या रहेगा इसका? सो व्हेन वी टेक द जनरल सेंस मीनिंग, कंटिजेंट एक्चुअली समथिंग विच इज अनसर्टेन. अनसर्टेनिटी है इसमें मतलब कंटिजेंट जनरली मीन्स समथिंग लाइक अनसर्टेन. फॉर एग्जाम्पल इफ अगर वी आर गिविंग अ मनी टू अ फ्रेंड, वो लौटाएगा नहीं लौटाएगा, इट्स समथिंग कॉल्ड कंटिजेंट, अनसर्टेन, करेक्ट. एंड इवन मेनी थिंग्स इनटू द फ्यूचर वेयर many things are uncertain, right? So when we start our business, it will run in profits or it will run into losses, or we can able to get the what we are aiming for. This everything is uncertain. So same word contingent generally means the uncertainty. So for example, why this is linked with something called asset and liability. Asset and liability, so this contingent word is, when you see the unit name, it is linking with our asset and liability, guys, correct? So we can take that example and discuss, guys. See, simple. अभी अगर मैंने अपने एक फ्रेंड को पैसे दिया है तो वो लौटाएगा नहीं लौटाएगा, इट्स कम्प्लीटली अनसर्टेन, राइट? वो मुझे देगा नहीं देगा. तो वो मुझे अगर नहीं दिया, एक्चुअली इट शुड बी माई एसेट, राइट? मैं जब किसी को भी पैसे दूंगा, इट शुड बी माई एसेट. बट if I'm giving it to one of my friend, in general sense, if I'm giving it to one of my friend, if he is returning back, it could be the asset for, it should be the asset, correct? जो भी टाइप रेट बोलेगा 1-2 months के लिए मुझे asset, this friend should be asset for me, right? But there is uncertainty in this relationship, right? Because वो पैसे तो लेगा बट देने की कुछ गारंटी नहीं है. So that uncertainty is sticking to my asset. अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा asset था उसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी स्टिक हो रही है, लाइक अनसर्टेनिटी रह रही है कि ये रियलाइज होगा नहीं होगा, ये एक्चुअली मेरा asset बनेगा या नहीं बनेगा. अंडरस्टैंडिंग है. सो दैट इज द रीजन. See, I will give you, this is the general example we are discussing to understand the word. Just once we go to the chapter, we can have the proper example which will suit to our business and the financial accounting. ठीक है. So when you see uncertainty, this is there in every transactions. But major transaction which are very much we have a certainty,
that are actually that will be recording, will do it as per our normal accounting process. But few transaction where uncertainty is more, there, then we got the what called contingent. अंडरस्टैंडिंग है। तो अपने एग्जांपल में जो अपने फ्रेंड को पैसे दूंगा, वो मुझे रिटर्न देगा या नहीं देगा, वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बिकॉज रिलेशन इज कमिंग देयर। सो दैट डाउट और अनसर्टेनिटी इज स्टिकिंग टू माई एसेट, अंडरस्टैंडिंग। और उस सेम वे व्हेन वी सी फ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो फ्रेंड पैसे लिया ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसके लिए लाइबिलिटी है, उसके लिए श्योर लाइबिलिटी, बिकॉज वो कैसे भी मुझे देना चाहिए, राइट। बट वो फ्रेंडशिप के रिलेशन में दैट कैन सिट कैन, उसको नहीं दिए तो भी तो परवाह नहीं पड़ेगा वैसे चीज, अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो अनसर्टेनिटी अगेन उसको भी स्टिक होगी, तो उसके लिए वो कंटीजेंट लाइबिलिटी बन सकती है, मेरे लिए कंटीजेंट असेट रह जाता, अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो so this contingent generally the word which stick with uncertainty, understanding। तो अनसर्टेनिटी हर ट्रांजैक्शन में रहेगी, बट फ्यू ट्रांजैक्शन में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और इफ यू टेक द विल गो विद द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड असेट एंड कंटीजेंट, असेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। सो वो अनसर्टेनिटी कितनी हाई है उसके हिसाब से अपना असेट और लायबिलिटी को देखने का तरीका और अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज होगा गाइस, understanding is। So if I summarize the main importance of this unit is much focusing on something called future things which are actually not control in the entity। तो सामने क्या होगा उस पे फोकस कर कर ये यूनिट वहाँ मतलब सामने की चीज पे ये यूनिट फोकस कर कर अभी उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए बताता, अंडरस्टैंडिंग है। तो बाकी के अकाउंट्स अभी तक, बाकी के यूनिट अभी अकाउंट्स के जितने भी पढ़े, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दी ऑल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स, ये ज़्यादातर तो 5 चीज़ों को कैच कर रहे थे और वहाँ पे अनसर्टेनिटी उतनी कुछ थी नहीं। बट वी हैव टू कंसिडर इवन अनसर्टेनिटी एंड थोड़े फ्यूचरिस्टिक ट्रांजेक्शन, नॉट मच लाइक बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है, बट थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर चीज़ों पे है उसको अपन कैसे डील करना चाहिए अकॉर्डिंग में, ये यूनिट प्रॉपरली आइडिया देगा गाइस। सो आई थिंक बाय दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बीइंग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि in CA inter we have separately accounting standard for this, and even in CA final we have something called Indian accounting standard there again। सो इंटर फाइनल में ये फिर से रहेगा और सेम मीनिंग जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे सेम वहाँ रहेगा, बट इंटर पे उतना उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट आई वांट यू टू गेट द थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड, सो दैट सामने जब इंटर फाइनल में ये फिर से आएंगे ना, यू कुड बी वेरी दैट शुड बी इजी फॉर यू, अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो now we can discuss the word called contingent asset guys। so contingent generally what I told you, it's something called uncertain, correct। तो अपने एग्जांपल में जब मैं फ्रेंड को पैसे दूंगा, yeah guys, so asset is something which is so when we see this word contingent as we discussed as of now, तो अनसर्टेनिटी बहुत चाहिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन में, थोड़ा बहुत तो फ्यूचर चीज़ों को देख कर रहेगा। बट when we see the general meaning of asset, तो अभी तक अपन asset क्या डिस्कस करके आए थे, this is something which is entity is owning and entity is having right on it, correct। तो बट ये ओनिंग और राइट का ही अनसर्टेनिटी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग। तो asset का मीनिंग क्या लिए थे अपन, मतलब जनरल मीनिंग ऑफ asset we took as this is the something entity is owning and entity has a right towards this asset, correct। so when the owning और ये right का uncertainty आएगा ना transaction में, then only it will become a contingent asset, understanding। and when what we took the general meaning of liability, this is entity owes it and entity is obligated to pay it, correct। obligation है यहाँ पे entity का, ये obligation का और ये owing का ही uncertainty जब रहेगा ना, that will become contingent liability guys। so asset and liability का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, asset and liability वही है, बट यहाँ पे uncertainty के वर्ड्स कैच हो रहे। so when we see the definition of asset, it was something what entity is owing, what entity is owning and what मतलब entity is having right towards this asset। बट ये owning का और ये right का uncertainty जब रहेगा ना, मतलब owning पे कुछ uncertainty है, right पे कुछ uncertainty है, uncertainty as in कि ये मेरे को right आएगा या नहीं आएगा, ये ओनिंग मेरे में भी मतलब आई एम एक्चुअली ओनिंग इट और नॉट, और डिपेंड ऑन सर्टेन अनसर्टेन इवेंट्स कि ऐसा है तो मैं ओन करूंगा, ऐसा नहीं है तो मैं ओन नहीं करूंगा, अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो that uncertainty is there in owning or uncertainty is there in using of that asset or having a right over that asset, that's the reason that thing will become now contingent asset। when we see the liability, what is the general meaning of liability guys, it was something entity is owing and it is obligated to pay, obligation था वहाँ पे, but ये obligation to pay वो भी अनसर्टेनिटी है, लाइक कब पे करना, किसको पे करना, कितना पे करना, अनसर्टेन है, अमाउंट क्लियर नहीं है, या
एंटिटी एक्चुअली पे करना नहीं करना वो भी क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग. सो ड्यू टू दैट थिंग विल बिकम कंटीजेंट लाइबिलिटी. सो व्हाई इट इज कमिंग, हाउ इट इज कमिंग, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये भी नहीं करेंगे, हाउ अकाउंटिंग विल बी डन फॉर दिस थिंग्स, ये सब विल डिस्कस शॉर्टली नाउ. क्लियर. तो भाई जस्ट आई वांट टू गिव यू द डिस्कशन की असेट एंड लायबिलिटी का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, बट व्हेन वी ऐड द वर्ड कंटीजेंट टू दैट जनरल सेंस में अनसर्टेनिटी जब इसको ऐड होगी, लाइक ओनरशिप की अनसर्टेनिटी, यूसेज की अनसर्टेनिटी, राइट की अनसर्टेनिटी, व्हेन वी कम टू असेट, व्हेन वी कम टू लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन की अनसर्टेनिटी, पेमेंट की अनसर्टेनिटी, कितना पे करना है, किसको पे करना है, या पेमेंट करना है नहीं करना है, एवरीथिंग व्हेन इट कैश टू दिस थिंग्स asset and liability, that it will become your unit called contingent asset and contingent liability. Clear guys? So meaning will change now. Asset ka definition, when we see contingent asset ka definition, it will have 4 parts. Understanding? So meaning will change now. See, I'm starting with the PDF now. So meaning will change for this asset and liability now. See guys. So when you see the contingent asset ka definition, definition is very good. We'll discuss each and every word of the definition so that you can have your own examples. मेरे example की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद example बना सकते हो. फिर सी व्हाट इज कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट एसेट में भी डिफाइन है, ये डेफिनेशन को आप रखने की जरूरत नहीं रहती, बट when you understand the crux of the discussion, automatically you will come up with a definition, and this definition will be same at inter and final level as well. So that the reason अभी आप जितना हो सके उतना इसको ग्रिप ला लिए, अंडरस्टैंड एवरीथिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, तो आपको स्मूथली रहेगा गाइस. सो सी इट इज वर्डिंग क्या हो रही, contingent asset may be defined as what guys, possible obligation. When you see this is what, possible asset, sorry my bad, it is possible asset. So contingent asset is something defined as a possible asset. what क्या ऐड कर रहा asset को, possible asset, कि ये मेरा asset बन सकता, अभी asset बना नहीं, बनने के chances है, अनसर्टेनिटी है इसमें, उतनी श्योरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, उतना कंक्लूसिव चीज नहीं है कि ये मेरा असेट है, मैं इसको ओन करता, इस पे मेरा राइट है. सो दिस कैन बिकम ए पॉसिबल असेट. एक पॉसिबल असेट है, बट ये पॉसिबल असेट कहाँ से आ रहा, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, अंडरस्टैंडिंग. तो कुछ पास्ट में से काम करे, पास्ट में कुछ ट्रांजेक्शन इवेंट्स करे, जिसके कारण ये मेरा अभी असेट बन सकता, बना नहीं अभी तक, बनता तो प्रॉपर असेट है, ये चैप्टर के बाहर हो जाता, फिर ये यूनिट के बाहर हो जाता, बट ये यूनिट में कब आता वो, व्हेन पास्ट इवेंट या ट्रांजेक्शन हो गया, बट ये अभी असेट बनाने, बनने की उम्मीद है इसमें, पॉसिबल असेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड whose existence will confirmed, मतलब ये कंफर्म कब होगा मेरे को, ये मेरा असेट है बोल के, अभी तक पॉसिबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, बट ये पॉसिबल कंफर्मेशन कब आएगा, ओनली आफ्टर occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events guys. तो सामने कुछ अलग, सामने की चीजों पे निर्धारित है, अंडरस्टैंडिंग. तो सामने फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर ये मेरा पॉसिबल असेट बन सकता, या पॉसिबल असेट विदाउट असेट चले जाता, अंडरस्टैंडिंग. तो पॉसिबल असेट जो है ना, अब इसमें 2 आउटकम रहेंगे, या तो मेरा असेट बनेगा, या तो पॉसिबल असेट के बाहर चले जाएगा, ना असेट समथिंग एल्स, इट कैन बी माय एक्सपेंस और समथिंग एल्स, अंडरस्टैंडिंग गाइस. सो दिस पॉसिबिलिटी asset, possible asset will confirm, will become sure, मतलब ये confirm तब होगा कि मेरा asset है, depending on something called one or more future uncertain event. तो future में कुछ uncertain event है, वो uncertain event future में होने से या नहीं होने से, तो कुछ चीजें नहीं होने से मेरा asset बनते, कुछ चीजें वो हुई तो मेरा asset बनते, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल पे डिफर करता है, अंडरस्टैंडिंग. सो सिंपल, अगर मैं किसी को अभी लोन दिया, मैं किसी को फॉर एग्जांपल फ्रेंड को, अपना एग्जांपल वही ले लो, फ्रेंड को मैं एडवांस दिया, वो फ्रेंड एडवांस कब देता, बोला मेरे को रिटर्न, कि अगर फ्रेंड है ना तो कंडीशन लगा सकता हूँ. वो कंडीशन कैसे लगाया, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये क्या बोलते हैं, एडवांस लेके कुछ बंडी लगा रहा या कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा, वो बिजनेस अच्छा चला तो मुझे पैसे लौटाएगा, बिजनेस अच्छा नहीं चला उसका तो मुझे पैसे नहीं लौटाएगा. सो माई अभी एक्चुअली मुझे लौटाना, दैट शुड बी माय एसेट राइट, बट इसका लौटाना किस पे डिपेंड है, अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. तो ये जो बिजनेस अच्छा चलता नहीं चलता, ये फ्यूचर अनसर्टेन है, तो अच्छा चला तो ये मुझे लौटाएगा बोला, अंडरस्टैंडिंग है. तो उसके हिसाब से मेरा एसेट बन सकता या पॉसिबल एसेट की वजह से रहता. दिस इज समथिंग विच आई एम गिविंग यू सम थोड़ा जेनरिक एग्जांपल, कि जो मैं असेट की बात कर रहा हूँ उसका आना किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, अंडरस्टैंडिंग. वी कैन हैव प्रॉपर एग्जांपल थोड़ी देर में, बट डेफिनेशन को समझने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि पॉसिबल असेट क्यों बोल रहे हैं अपन, ये मेरा अभी श्योर असेट नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है, मेरे पास्ट ट्रांजेक्शन इवेंट से ही जा रहा। कुछ फ्यूचर ट्रांजेक्शन, हर चीज फ्यूचर की इंग्लिश में, कुछ पास्ट में ट्रांजेक्शन इवेंट्स ऐसे करे अपन, मतलब पास्ट में मैं इसको लोन दिया, एडवांस दिया, ये मेरा पास्ट ट्रांजेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग। उससे ये भी कब लौटाएगा उस पर डाउट आ रहा, कब लौटाएगा उस पर अनसर्टेनिटी है। तो पास्ट ट्रांजेक्शन क्या था अपने एग्जाम्पल में, कि आई हैड गिवन एडवांस टू माई फ्रेंड, तो मैं फ्रेंड को एडवांस दिया, दिस इज माई पास्ट ट्रांजेक्शन या पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट से पॉजिटिव मतलब अच्छे नहीं, ये मेरा एसेट बनना ना, इट शुड बी माई डेटा कि ये मेरे से पैसे लिए, ये मुझे लौटाना चाहिए 1-2 महीने में। बट वही पॉसिबल बिकॉज ये कंडीशंस लगा है कि धंधा चले तो ही तेरे को रिटर्न करूंगा, नहीं चले तो आई कांट पे यू। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। और क्या है, नॉट होनली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, मेरे कंट्रोल में उसका धंधा वो चलाएगा ना, मैं चलाऊंगा, तो एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो कंट्रोल एंटरप्राइजेस का नहीं है, और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, अकरेंस और नॉन अकरेंस पे डिपेंड है, अपने पास ट्रांजेक्शन से उठ के आ रहा हो, और असेट पॉसिबल है। सो व्हेन वी सी कंटीजेंट असेट का डेफिनेशन गाइस, इट हैज 4 पार्ट्स। फर्स्ट, इट्स पॉसिबल असेट, इट इज व्हाट, पॉसिबल असेट। कहाँ से आ रहा, पास्ट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट से आ रहा, एंड पास्ट ट्रांजेक्शन इवेंट से इस ये अपना पॉसिबल असेट असेट कब बनेगा, on confirmation of one or more occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event। तो एक या दो से इवेंट भी रह सकता है, अभी खाली ने बिजनेस का बोला, बिजनेस के साथ साथ कुछ और भी बोल सकता है, राइट। तो और कंडीशन कितने लगा था वैसा, वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, there is a one or more uncertain future event आ रहा, एंड अकरेंस और नॉन अकरेंस, कभी कुछ होने से या कुछ नहीं होने से भी बोल सकता, अंडरस्टैंडिंग। सो अकरेंस और नॉन अकरेंस, वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन, एंड लास्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी होनली, मतलब एंटिटी के कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में नहीं है ना उसका बिजनेस। तो अपने एग्जांपल से जस्ट आई एम लेटिंग यू नो दी फुल करक्स ऑफ द डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो डेफिनेशन से क्या मालूम चल रहा, कंडीशन असेट वो असेट मतलब पॉसिबल असेट है, ये मेरा असेट बन सकता, और कहाँ से उठ के आया, ये मेरे पास्ट इवेंट से ही आया, पास्ट इवेंट से ही उठ के आ रहा। एंड इसका असेट होना किस पे कब कंफर्म होगा, सी कंफर्मेशन इज अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट गाइस, क्लियर। तो वो अनसर्टेनिटी है दैट इट इज बिकमिंग कंटीजेंट असेट, क्लियर। सी नो इट यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो ये हम उसका बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे, आई कांट डू दैट, मेरे प्लानिंग में नहीं है, और मेरे एक्सपेक्टेशन में भी नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, चलो अच्छा चल रहा और मेरे को मेरे पैसे आना, बट वो अच्छा चलना इट अच्छा नहीं भी चल सकता, राइट। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती, दैट गिव राइज टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो यहाँ पे पैसा ही, कभी कभी पैसे की जरूरत नहीं रहती, दैट कैन बी लैंड। कुछ लैंड के लिए लड़ रहे अपन, अंडरस्टैंडिंग। एक क्या बोलते हैं, फैक्ट्री वाज ओनिंग सम लैंड, बट वो लैंड पे कोई केस फाइल कर दिया एंड ऑल, तो अब ये लैंड के लिए केस चल रहा, अब ये केस जीते तो लैंड मेरा, केस हारे तो लैंड गया बाहर से। अभी डे टू डे कैसी हियरिंग चल रही, कैसी प्रोसीडिंग चल रही, उसके हिसाब से मेरी अनसर्टेनिटी क्लियर होती, बढ़ तो जाती या कम तो होती, अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो बेस्ड ऑन सम अकरेंस की केस जीतना, अकरेंस और वो फ्यूचर में मालूम होता, जज सब फ्यूचर में देते डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग। तो वो केस जीतना और अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, उसके ऊपर ये मेरा असेट अभी डिपेंड है। तो ये मैं लैंड को अभी असेट के वैसा बता नहीं सकता, तो मैं इसको कंटीजेंट असेट के वैसा कैसे रिकॉर्ड करता, क्या करता है, विल डिस्कस, बट अब असेट तो नहीं बता सकता, अंडरस्टैंडिंग। सो इसे तो पैसा ही जरूरी नहीं है, कभी कभी लैंड पे भी चल सकता, कभी कभी नॉन मॉनिटरी चीज पे भी रहता, लाइक लैंड मशीन, तो कुछ दैट देयर इज अ जनरल वर्ड क्या यूज कर रहे हैं पे, पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इनफ्लो। तो असेट कभी भी इनफ्लो में आता कि ये लैंड वापस आना या पैसा वापस आना, तो असेट के लिए इनफ्लो रहता, व्हेन वी स्पीक अबाउट लायबिलिटी आउटफ्लो में जाता, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट बोलता। सो व्हेन वी आर अवेयर ऑफ कंटीजेंट असेट डेफिनेशन, कंटीजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन ऑलमोस्ट यू कैन एबल टू से विथ योर वर्ड्स, खाली थोड़े वर्ड चेंज होंगे, सिंपल। तो देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों बोल रहा, भाई कैश ही इन्वॉल्व नहीं है, कैश को छोड़कर यू कैन गेट समथिंग कॉल्ड लैंड जैसे। तो किस पे अनसर्टेनिटी है, उस पे कैश पे अनसर्टेनिटी, तो कैश पे रह सकता, लैंड पे अनसर्टेनिटी रह सकती, किसी भी चीज पे अनसर्टेनिटी रह सकती जो पास्ट इवेंट है बिजनेस के, अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लेम है, claim that an enterprise is pursuing through legal process where outcome is uncertain। कुछ लीगल प्रोसेस, आपने लैंड का एग्जांपल दिया ना, सो लीगल प्रोसेस में है जहाँ पे आउटकम, उसका आउटकम मतलब केस जीतेगे या हारेगे वो अनसर्टेन है, बिकॉज नो वन कैन से अब कैसी कैसी प्रोसीडिंग चलती भैया। तो भैया आप लॉयर अच्छा लगा कि आप ही जीतना, मैं कितना भी अच्छा कर लो, इट डिपेंड्स ना अगेन इन फ्यूचर इवेंट, अंडरस्टैंडिंग गाइस। तो कैसे कैसे प्रोसीडिंग जाती, दैट ऑल मैटर्स देयर। तो the legal process which where outcome is uncertain, this is called contingent asset।
तो खाली वो जनरल मीनिंग देके छोड़ दिया, जनरल एग्जांपल देके छोड़ दिया वो भी। तो अपन में लैंड के एग्जांपल देके समझाना चाह रहे कि लीगल प्रोसेस में चल रहा और आउटकम अनसर्टेन है, जीते तो मेरा लैंड, हारे तो गया लैंड मेरे कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग वैसा। सो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस पढ़ के आए तो ऑलरेडी याद करो, समवेयर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर इनकम को यू शुड नॉट रिकॉर्ड, फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करना। तो फ्यूचर लॉसेस जो करंट इवेंट्स, करंट चीजों पे निर्धारित है, लाइक करंट वन ऑफ द आइटम विच इज सिटिंग करेंटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लैंड या डेटार, उसके रिलेटेड फ्यूचर में लॉस आने वाला है तो अपन रिकॉर्ड करना नहीं करना। दैट वाज द प्रूडेंट कॉन्सेप्ट इफ यू रिमेंबर। प्रूडेंस क्या था केस, तो फ्यूचर लॉस रिलेटेड टू करंट आइटम सिटिंग इनटू फाइनेंशियल, तो हर फ्यूचर लॉस को नहीं लिखते राइट, फ्यूचर लॉस जो करंटली जो फाइनेंशियल में बैठ रहा ना उसका फ्यूचर लॉस यू हैव टू रिकॉर्ड इट एज पर द प्रेजेंट, एज पर द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी वही बोलते हैं, इवन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट फाइनल वही बोलते हैं, इंडिपेंडेंट शुड नॉट रिकॉग्नाइज कंटीजेंट एसेट, शुड नॉट रिकॉग्नाइज। तो कंटीजेंट एसेट बुक्स में नहीं बताना, रिकॉग्नाइज नहीं करना मतलब तुम्हारे बैलेंस शीट में कंटीजेंट एसेट्स नहीं आना, प्रॉपर एसेट आना, 100% श्योर है सही एसेट्स आना, प्रॉपर एसेट्स ही आना, अंडरस्टैंडिंग। तो कंटीजेंट एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करना, बुक्स में नहीं आना। बट सी हियर इट इज पॉसिबल दैट रिकॉग्निशन ऑफ कंटीजेंट एसेट में रिजल्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। अगर तुम असेट बताना चालू कर दिए, अगर अलाउ कर दिया स्टार्टेड, तुम ऐसे जो चीज़ें अनसर्टेन है, जो चीज़ों पे डाउटफुल है वो भी लिखना चालू कर देते बुक्स के अंदर, तो उसके कारण क्या होता है दैट में नेवर भी रियलाइज, तो ऐसी चीज़ें भी लिख देते जो एक्चुअली हकीकत में आते ही नहीं। तो डिसीजन मेकिंग याद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते थे, ऑब्जेक्टिव याद करो, डिसीजन मेकिंग, सॉल्वेंसी पोजीशन, ये सब फिर अच्छे से नहीं होते। दैट द रीजन कंटीजेंट एसेट्स को यू शुड नॉट रिकॉर्ड इट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉग्निशन अलाउड नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है, however when the realization of income is virtually certain guys, वर्डिंग देखो virtually certain मतलब कंफर्म है अभी कि अपना मतलब के जीत गए, जजमेंट आ गया, तो वो फ्यूचर इवेंट जो था ना अनसर्टेनिटी जो है ना, अनसर्टेनिटी निकल गई अभी, जज साहब दे दिए जजमेंट की लैंड हमारे ही, तो वर्चुअल सर्टेनिटी आ गई, जो भी अनसर्टेनिटी थी वो चले गई, जज साहब जज देने से अपन जीत गए वो केस। तो केस जीतने से क्या हो रहा, अनसर्टेनिटी हैज बीन गॉन, अनसर्टेनिटी पूरी चली गई गैस। तो अनसर्टेनिटी जैसे रिमूव हो गई, वी गॉट वर्चुअल सर्टेनिटी। वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब क्या, अनसर्टेनिटी का मूव हो जाना कंप्लीटली। तो वर्चुअल सर्टेनिटी आती थी कि दैट रिलेटेड एसेट नो लॉन्गर रिमेन एज कंटीजेंट एसेट, अभी वो कंटीजेंट एसेट नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉपर एसेट है, अभी बैलेंस शीट में फिर से आना चालू हो जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट इज कंटीजेंट एसेट नाउ। तो डेफिनेशन को समझे तो क्या है, पॉसिबल एसेट है, वर्डिंग देखो ध्यान दो, पॉसिबल एसेट, मेरा एसेट बनने के चांसेस है इसमें, बट अभी बनने के चांसेस कब क्लियर होते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, क्लियर कंफर्म कब होता, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ कुछ चीजें होना या कुछ चीजें नहीं होना जो फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट्स पे डिपेंड है। तो वो जैसे होते उसके हिसाब से कंटीजेंट एसेट कैन बिकम माय एसेट और इट कैन बी नो लॉन्गर कंटीजेंट एसेट आल्सो, इट कैन बी पार्ट ऑफ माय एक्सपेंस और लॉस। समझ रहे गाइस, दैट वाज द मीनिंग। सी यार अभी कंटीजेंट एसेट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी दो बार अलग अलग चीज पढ़े अपन, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज और नॉट शुड बी डिस्क्लोज, ये दो चीजें अलग अलग है या गाइस। सो जस्ट नाउ वी गॉट टू नो शुड नॉट बी डिस्क्लोज, तो कंटीजेंट एसेट ना डिस्क्लोज होता ना रिकॉग्नाइज होता, ये दोनों सेम चीजें अलग अलग है गाइस। थोड़ा सी जस्ट नाउ वी डिस्कस कंटीजेंट एसेट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, एंड वन मोर थिंग वी जस्ट नाउ वी गॉट टू नो कंटीजेंट एसेट शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों चीज सेम है अलग अलग है गाइस। सो आई वांट 2 मिनट का डिस्कशन हियर। सी शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज मतलब ये बुक्स में अकाउंट भी नहीं होगा, इसकी ना एंट्री बनेगी ना, मतलब एंट्री बने इन द सेंस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं, ना पीएनएल में ना बैलेंस शीट में, वेरेवर जनरली बैलेंस शीट की बात होती, सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं। तो शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज का मतलब इसकी एंट्री पास नहीं होती, ये कंप्लीटली इग्नोर मार देते हैं इसको। एंड समथिंग इज अगेन शुड नॉट बी डिस्क्लोज, शुड नॉट बी डिस्क्लोज का मतलब क्या है, सी थोड़ी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब बैलेंस शीट में आते ना, या जो बैलेंस शीट में नहीं आते, उनको अपन नीचे नोट्स के वैसा बोल सकते, ऊपर तो नहीं दिखाए बट नीचे कहानी लिख सकते नोट पॉइंट के वैसा कि ऐसा केस चल रहा, तो हम सोच रहे कि हमारा सेट बन सकता। तो ये क्या बोल रहा है, शुड नॉट बी डिस्क्लोज, ये कहानी भी नकली को बोल रहा, यूजर को ना रिकॉर्ड करके बताओ ऊपर और ना ही कहानियों में बताओ। सो अंडरस्टैंडिंग, तो शुड नॉट बी डिस्क्लोज एंड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज का डिफरेंट इंपैक्ट है। शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स में नहीं आता, एंड शुड नॉट बी डिस्क्लोज मतलब एज अ नोट पॉइंट्स भी नहीं बैठते, अंडरस्टैंडिंग। तो ये कंडीशन एसेट कहीं नहीं आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना ऊपर ना नोट्स में, क्लियर। सी कंडीशन एसेट यूजुअली डिस्क्लोज, अब भैया फिर डिस्क्लोज बोल रहा, आगे तो देखो
यूजुअली डिस्क्लोज रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब क्या है, जो यूजर्स को दे रहे हैं ना उनमें तो कहीं नहीं है, जहाँ जो यूजर्स को दे रहे हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना वहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रहा ना वहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा, बट अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट्स बोल रहा। मतलब क्या है, अब पार्टनरशिप फर्म है, उनमें अगर ये कांड हुआ तो पार्टनरशिप के फाइनेंशियल्स में नहीं आता ना, नोट्स में आता, बट पार्टनर्स अंदर अंदर एक कुछ रिपोर्ट बना सकते हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए। अप्रूविंग अथॉरिटी पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप तो यू सी यूजुअली डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। तो एंटिटी टू एंटिटी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उनके रिपोर्ट्स में आ सकता। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, कंपनी का हर चीज अप्रूव कौन करता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट रहती समथिंग कॉल्ड डायरेक्टर रिपोर्ट। तो डायरेक्टर रिपोर्ट्स के अंदर ये बता सकते हो, अंदर की बातों में तुम काने लिख लो, अंडरस्टैंडिंग है। तो वहां पे उन लोगों का ये चीजें बताना, जैसे केस चल रहा है, ये हमारा सेट बन सकता बोल के दे कैन डिस्क्लोज इन अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट्स में। बट यूजर्स के लिए जो रिपोर्ट्स बन रहे, जो फाइनेंशियल्स बन रहे, वहां पे ना रिकॉग्नाइज होता ना डिस्क्लोज होता कंटीजेंट एसेट्स के लिए। दिस इज द अकाउंटिंग आई कैन से एज ऑफ नाउ। Clear guys? So example there, approving authority of board of director in case of company and corresponding approving authority in case of other enterprises. तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स रहते हैं, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या नॉर्मल पार्टनर्स भी रह सकते हैं। तो डिपेंड ऑन एंटरप्राइजेस अप्रूविंग अथॉरिटी विल चेंज। तो उनके रिपोर्ट्स में कंटीजेंट एसेट का डिस्क्लोजर बनता, बस जो भी इन्फ्लो आ रहा है दे हैव टू से दैट प्रोबेबल वन वे। क्लियर गाइस? तो कंटीजेंट एसेट आर असेस्ड कंटिन्यूअसली, मतलब टाइम टू टाइम इसके ऊपर अपन देखते रहते, मालूम करते रहते केस कैसे चल रहा, केस में इंप्रूवमेंट्स क्या है, केस कहाँ तक बढ़ा, कितनी हियरिंग्स हो रही, कितना चांसेस है अपन जीतने के, कितने चांसेस है अपन हारने के। सो उसको असेस करते रहते। असेस मतलब क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस समझ लो, या देख लेते रहते हैं उस पर। एंड इफ हैज बिकम वर्चुअल सर्टेनिटी, जैसा वर्चुअल सर्टेनिटी आ गई, मतलब कंफर्म केस जीत रहे अपन, या जजमेंट आ गया, that the inflow of economic benefit will arise, चलो अब अपने को लैंड मिल रहा है या पैसे मिल रहे, that asset and the related income are recognized in financial statement। अब लिख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा केस हुआ, अब रिकॉग्नाइज बोल रहा सीधा, मतलब एंट्रिया पास होती है, अभी डिस्क्लोज भी नहीं, रिकॉग्नाइज कहने भी जरूरत नहीं है, सीधा लिखो अभी एंट्रिया पास करो, बिकॉज तुम सर्टेनिटी आ गई, वर्चुअल सर्टेनिटी समथिंग 100% प्रूफ मिल गया कि अपना ही से अभी ऑफ द पीरियड इन विच चेंजेस अकर, जो पीरियड में चेंज हुआ वो पीरियड में लिखते। आज से 5 साल बाद से फ्यूचर इवेंट ना कभी भी हो सकता, मान अपने तो कोर्ट्स का यू नो इंडियन कोर्ट्स कितना टाइम लेते हैं। सो जब भी ये कंटिन्यूसली एसेस करे बाद, जैसे अपने को श्योरिटी मिलती तब इसको बुक्स में दिखाते, तब तक श्योरिटी नहीं है, तब तक वर्चुअल वर्डिंग इज व्हाट, वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है, तब तक ना बुक्स में आता ना डिस्क्लोज होता। बट जो इंटरनल अप्रूविंग अथॉरिटी है उनके रिपोर्ट्स में ये डिस्क्लोज होता। क्लियर गाइस? एमसीक्यूज बन सकते हैं, ट्रू और सर एमसीक्यूज तो ही नहीं, बट ट्रू और फॉल्स बन सकते हैं। क्लियर? तो दैट वाज योर कंटीजेंट एसेट गाइस। तो आई थिंक वी डिस्कस समथिंग कॉल्ड कंटीजेंट एसेट एलॉबरेटली। तो एग्जांपल्स के तौर पे कैसे लैंड्स पे केस चल रहा, लिटिगेशन, जो भी एंटिटी के एसेट्स थे उन पे केस आना, या कुछ चीज अपन जो हासिल कर एंटिटी ओन करना चाह रही थी उस पे लिटिगेशंस रहना, ये अपने बन सकते नहीं बन सकते, ये सब चीज़ें फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड्स है। तुमको एंटिटी एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करना या डिस्क्लोज भी नहीं करना, अप्रूविंग अथॉरिटी की चीज़ों में बताते जो डिस्क्लोज करते जाओ। दैट वाज योर मीनिंग। एंड व्हेन आई डिस्कस वंस अगेन द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट असेट, इट इंक्लूड 4 थिंग्स। क्या था साइज? पॉसिबल असेट, अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, एंड समथिंग, मतलब इट कंफर्मेशन कब आ रहा है इसका, अकरेंस और नॉन अकरेंस और वन और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थी, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। लैंड का केस जितना अपने कंट्रोल में, अपन खाली लड़ते बट अपने कंट्रोल में क्या क्या अपन जीतते बोल के, वो जैसा के है माइंडसेट पे है, उनको कितना कंफर्मेशन आया, कितना कंफर्ट आया, उसके हिसाब से जजमेंट आएगा। सो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, एंटिटी इज नॉट एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट असेट नाउ। अंडरस्टैंडिंग? आउटकम जो भी रिजल्ट आएगा ना वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड। दैट वाज योर कंटीजेंट असेट। क्लियर गाइस? नाउ कंटीजेंट लायबिलिटी गाइस। कंटीजेंट लायबिलिटी व्हेन यू सी, इसके 2 डेफिनेशंस है। वन डेफिनेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट कंटीजेंट असेट पार्ट सी हियर। तो कंटीजेंट लायबिलिटी में भी डिफाइन है पार्ट ए। पार्ट ए का डेफिनेशन सी ऑलमोस्ट इक्वल टू अपन जो डिस्कस करके, खाली लायबिलिटी के हिसाब से बड़ा चेंज होती है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑब्वियसली वो पॉसिबल असेट तो एक है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये भी पास्ट इवेंट से आता ऑब्वियसली। एन एग्जिस्टेंस, जिसका कंफर्मेशन कब होता, विच विल बी कंफर्म ओनली ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और वन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट एंड नॉट within the control of the entity. So part A is almost equal to contingent asset का definition। और 2 पार्ट क्यों वो भी अपन डिस्कस करेंगे, बट पार्ट यू गेट द कंफर्ट। क्या है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, एवरीथिंग सेम एज पर कंटीजेंट असेट। अब एग्जांपल के तौर पे लिए तो व्हाट आई कैन से इज, सपोज वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम प्रोडक्ट्स। अब वो कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे और वो प्रोडक्ट्स क्या है,
हार्म किसको यूज करने से गंदा हार्मफुल निकला, कि लाइक दैट प्रोडक्ट उनको हेल्थ इश्यूज कर दिया, कुछ इश्यूज कर दी, तो वो अपने पे क्लेम डाल देते, अंडरस्टैंडिंग। और वो क्लेम डालने से अपने को पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको। अब जैसे जैसे क्लेम चला या हम नहीं देते बोल के बोले, तो फिर दोनों मिलकर कोर्ट में गए, वहाँ पे चल रहा, वो हारने के अपन ऑब्वियसली अपने को पेनल्टी गिरेगी अभी, तो वो पेनल्टी कितनी गिरेगी, अपन कितना डिफेंड कर सकते हैं। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन टू पे, अंडरस्टैंडिंग, अरेंजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, अपन जो गुड्स बनाए थे ना उसके कारण यूज हो रहा है। तो अकरेंस और नॉन अकरेंस, तो अपन केस जीते या नहीं जीतेंगे, जीत गए, अगर केस नहीं जीत गए तो वी आर एबल टू से कि हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिखे थे वहाँ पे कि ऐसे ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करने से आपको हार्म हो गई। तो अगर आप वो जस्टिफाई कर सके कि हमारे कारण हार्म नहीं हो रहा, यूजर के कारण ही खुद ही हार्म हो गया, वो केयरलेस था, तो वी अपन जीतने के भी चांसेस रह सकते हैं। बट अपन जस्टिफाई तो अच्छे से नहीं कर सके, नहीं लड़ सके, तो अपन हारने के क्या कारण क्या होता है, लाइबिलिटी पे करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन आ सकता है, अभी श्योर नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन फ्यूचर जजमेंट के हिसाब से। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन सेम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट और अपने कंट्रोल में नहीं है। तो दिस इज द पार्ट वन पार्ट, एक पार्ट है जो कंडीशन लायबिलिटी का डेफिनेशन है। तो थोड़े पार्ट्स इधर बैठने से कंडीशन लायबिलिटी बन जाती, और एक पार्ट है यहाँ नहीं बैठे ना, इधर भी बैठ सकते हो। तो पार्ट बी क्या है, तो बेटर आई विल डिस्कस यू विद फ्लो चार्ट हियर ना, गिव मी अ मिनट, या when you see contingent liability guys, it has two parts, तो इसका डेफिनेशन दो पार्ट्स बात करता। तो एक पार्ट जो अपन ऑलरेडी डिस्कस करके आए, दैट विल सी एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो ऑलरेडी अपन सब डिस्कस कर लिया, पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, और कंफर्मेशन क्या बात है, अकरेंस और नॉन अकरेंस, वन और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, और एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, सेम लाइक कंटीजेंट असेट। दैट वाज योर पार्ट वन ऑफ द डेफिनेशन। पार्ट टू इज समथिंग कॉल्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्टिंग, कंटीजेंट लायबिलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस। सी या नो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब, इससे क्या समझ में आ रहा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नोट से क्या समझ में आ रहा, मतलब कंफर्म है अभी पैसे देना है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट मतलब अभी हमारे को देना ही देना है, या पैसे ही नहीं, देर इज कंफर्म आउटफ्लो होगा भी। यहाँ पे व्हेन यू सी अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, देर इज अनसर्टेनिटी कि हमको देना है या नहीं देना है। व्हेन यू आई एम सेइंग प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कंफर्म देना है, अभी की स्थिति देखे तो अपने को अभी पक्का लायबिलिटी गिर गई, देना ही देना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पापा स्टिल वाई कंटिजेंट, जब देना है कंफर्म है, कंटिजेंट क्यों आ रहा, विल सी। इसके दो पार्ट्स है जो डिस्कस करने से आइडिया आ जाता है कि ये कंटिजेंट क्यों आ रहा। सो स्टे फोकस हियर नाउ। सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बट कंटिजेंट क्यों है, दो चीजों के कारण, दिस और दिस। वन थिंग इज समथिंग कॉल्ड आउटफ्लो, आउटफ्लो क्वेश्चन मार्क है, मतलब देना है, कितना देना है, अंडरस्टैंडिंग, किसको देना है, क्लैरिटी नहीं है, किसको देना है, आई मीन सपोज अपने खाना भी क्लेम, व्हाट आई टोल्ड दैट एग्जांपल कि अपन एक गुड्स मैन्युफैक्चर करते कंपनी में है, अपना प्रोडक्ट किसी को हार्म कर दिया, अपनी गलती कंफर्म है बिकॉज हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे कैसे यूज करना। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वी रेडी टू टेक ऑन अस कि चलो हम ले रहे, बट कितना पैसा देना है किसको मालूम, कौन बोलेगा कितनी, मतलब 5 लाख दो, 4 लाख दो, अब उसको जितना हार्म हुआ, उसका सपोज कुछ स्किन इफेक्ट हो गया, या कुछ क्या बोलते हैं फिजिकल डैमेज हो गया उसका, या उसकी बॉडी डैमेज हो गई, अब उसका वैल्यू कितना, पेनल्टी देना, आउटफ्लो देना, करेक्ट श्योर है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बट हाउ मच टू पे, आउटफ्लो कितना देना, दैट इज नॉट क्लियर। अनसर्टेनिटी कहाँ है यहाँ पे, ऑब्लिगेशन पे अनसर्टेनिटी नहीं है। आई टोल्ड यू, याद करो लायबिलिटी के अंदर दो है, ऑब्लिगेशन एंड एंटिटीज ओविंग, और हाउ मच दे आर ऑब्लिगेटेड टू पे। ओविंग यहाँ पे क्लियर है कि कंफर्म तो आपको देना है, बट कितना पे करना है क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। सो ऑब्लिगेशन यहाँ पे अनसर्टेन है, ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लिगेशन इज सर्टेन, बट हाउ मच टू पे, हाउ मच टू पे इज अनसर्टेन,
भैया चलो एक अंदाजा तो मैं लगा लो, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ वैल्यू बोल लो, मैं अंदाजा भी नहीं मार सकता हूँ। एंड इवन आई कैन नॉट एस्टिमेट, इवन आई कैन नॉट एस्टिमेट, एस्टिमेशन भी नहीं कर सकता हूँ। एस्टिमेशन भी मतलब अंदाजे से 5 लाख पड़ता, 6 लाख पड़ता, वो भी नहीं बोल सकता। ऐसा कारण फर्स्ट टाइम हुआ मार्केट में। सपोज ये केस ऑलरेडी हो गया था तो वहाँ पे जज साहब इतनी पेनल्टी बोले थे, ऐसा कुछ है तो आई कैन एस्टिमेट, कुछ पास्ट रिकॉर्ड ही नहीं है। सो ऐसा कांड फर्स्ट टाइम हुआ मार्केट में, यूर अंडरस्टैंडिंग। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या, अनसर्टेनिटी ऑब्लिगेशन में नहीं है। सी जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन में बोल रहा ना, पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या, अनसर्टेनिटी ऑब्लिगेशन पे। तो वो ऑब्लिगेशन ही क्लियर नहीं है कि देना नहीं देना, बट यहाँ पे देना कंफर्म है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब अनसर्टेनिटी वन, अनसर्टेनिटी का है कितना पैसा देना या पैसे कितना देना वो नहीं मालूम, या तो तुम एस्टिमेट भी नहीं कर सक रहे। सीधा डेफिनेशन है एक बार, यू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो पार्ट 2 क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कंफर्म देना है, दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये भी मालूम है पास्ट इवेंट से आया, देना कंफर्म है, बट नॉट रिकॉग्नाइज, बिकॉज रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे अपन इसको लाइबिलिटी के वैसा, नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज it is not probable that outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation। कितना होना नहीं मालूम, कितना देना है रिक्वायर्ड, कितना पैसा दूं, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट, मतलब वहां पे अनसर्टेनिटी है, कितना पैसा देना है, अनसर्टेनिटी वहां है। और क्या है, और एक पार्ट क्या है, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड। भैया पैसा कितना देना है वो नहीं मालूम, चलो पैसा देना नहीं मालूम, अंदाजा तो लगा सकता है, क्या अंदाजा भी नहीं लगा सकता, आई कांट इवन एस्टिमेट। रिकॉर्ड किस पे करो, कितने पे रिकॉर्ड करो। तो अंडरस्टैंडिंग दैट द रीजन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहते हुए भी इट इज बिकमिंग कंटिंजेंट। अंडरस्टैंडिंग गाइस, कंटिंजेंट व्हेन यू सी, दो चीजें है, पॉसिबल एंड प्रेजेंट। पॉसिबल सेम लाइक कंडीशन असेट, पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लिगेशन पे अनसर्टेनिटी है, बट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन पे अनसर्टेनिटी है, देना कंफर्म हो गया बट कितना देना और वो क्लियर नहीं है। और आफ्टर दैट आई कांट इवन एस्टिमेट, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि 5-6 या 6 लाख या 60 लाख, अमाउंट का अंदाजा भी नहीं लगा सकता, एस्टिमेट तक नहीं कर सकता। आउट ऑफ नो एक्सपीरियंस आई कैन से एस्टिमेशन नहीं कर सकता। रीजन आई हैव नो एक्सपीरियंस ऐसे कांडों का, या इंडस्ट्री में भी ऐसे किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा समझो वैसा। क्लियर। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्लियर गाइस। सो यू हैव टू बी थोड़ा बहुत केयरफुल हियर। डेफिनेशन के दो पार्ट्स है, पॉसिबल प्रेजेंट। पॉसिबल वहां पे ऑब्लिगेशन पे अनसर्टेनिटी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में ऑब्लिगेशन में अनसर्टेनिटी नहीं है, बट दो चीजों पे अनसर्टेनिटी है, या तो अमाउंट कितना पे करना है नहीं मालूम, एंड वन मोर थिंग कॉल्ड यू कांट इवन एस्टिमेट एज वेल। बट यू पे अटेंशन नाउ, देयर इज वन मोर कॉल्ड प्रोविजन। तो प्रोविजन एक वर्ड है, वहां यू में हार्ड समथिंग कॉल्ड पीपीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट। तो वहां पे अब देखो इधर, if it is, see focus here guys, if it is present obligation, if it is present obligation, an estimate can be made, estimate can be made, present obligation और estimate कर सकते कि इतना हो सकता उतना हो सकता, then entity should create provision, entity should create provision। अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, ना ही आउटफ्लो नहीं मालूम, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। एस्टिमेट नहीं कर सकते तो कंटीजेंट लायबिलिटी, एस्टिमेट कर सकते तो प्रोविजन। प्रोविजन मतलब अब तुम एक एस्टिमेट कर सकते हो ना वो वैल्यू पे, यू सी दैट द रीजन पीपीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट, दैट इज द प्रोविजन। बिकॉज अंदाजा मार सकते कि 5% लॉस, यू माइट हैव 5% पीपीडीडी, 10% पीपीडीडी, 12% पीपीडीडी। वो परसेंटेज क्या है, एक तरीके का एस्टिमेट है, अंदाजा लगा सक रहा है कि मैं 5% मेरा लॉस हो सकता है डेटास में। अंडरस्टैंडिंग। सो एस्टिमेट कहाँ कर सकते हैं, प्रोविजन, जहाँ पे भी एस्टिमेट नहीं कर सकते इट विल बी कंटीजेंट लायबिलिटी। So there is very thin line of difference between contingent liability and provision. See, both are present obligation. Both are what? तो contingent liability possible भी रह सकती, but contingent liability जो present obligation है और estimate नहीं कर सकते, then contingent liability. Present obligation है, estimate कर सकते, then it will become provision for bad debt। मतलब provision हो जाता, जो वो चीज का provision बना लो, किसी भी चीज का वो चीज का provision बना ले सकते। जब ना estimate कर सकते और present obligation है, then it will become contingent liability। Clear guys? So if I write here shortly what we are discussing, give me a second, yeah. So if I write here shortly, here provision is something, present obligation plus estimation can be
मेड, बट कंटीजेंट लाइबिलिटी व्हेन आई से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी रह सकता और पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी रह सकता गाइस, एंड एस्टिमेशन की रिक्वेस्ट एस्टिमेशन कैन नॉट बी मेड और आउटफ्लो कितना देना है नहीं पता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी. सी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रह सकते हैं दोनों भी, बट एस्टिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं तो प्रोविजन बन सकता, और एस्टिमेशन जब नहीं कर सकते या आउटफ्लो बराबर नहीं है या पॉसिबल ऑब्लिगेशन, दैट विल बिकम कंटीजेंट लायबिलिटी. ये फिर से आपको इंटरनल फाइनल में फिर से आएंगे ये प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट असेट, बट अभी तुम जितना ग्रिप लेके उतना बेटर रहेगा. क्लियर गाइस? सो आई थिंक वी कैन जस्ट रन विद द मटेरियल एक बार. सी एग्जाम्पल दे रहा, एक्स सेल्स अ मशीन टू मिस्टर वाई, एनी डैमेजेस इनकर्ड, एक सेकेंड, हाँ या फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स सेल्स अ मशीन टू मिस्टर वाई, एक्स वाई को मशीन भेज रहा है, एनी डैमेजेस इनकर्ड बाय मिस्टर वाई while using the machine need to be compensated by मिस्टर एक्स. तो एक्स क्या करा, वाई को मशीन दिया, अब मशीन यूज करते करते कुछ भी वाई को लॉस हुआ तो एक्स कंपनसेट करना. आफ्टर फ्यू डेज लेटर on the date of sale of machine, Mr. X receive a notice from Mr. Y who is claiming damage of 20 lakh. वो 20 लाख दिया बोल रहा सीधा वही. The notice mentioned that the worker met with an accident during the use of the machine. वर्कर को लॉस हो गया मशीन के कारण, 20 लाख दिया बोल रहा सीधा वही, and it is required to be compensated. Understanding? तो यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल, एक्स इज गिविंग मशीन टू वाई, और यहाँ पे क्लियर कट क्या बोले डिस्कशन था, मशीन यूज करते करते वाई को कुछ भी अगर लॉस हुआ एक्स कंपनसेट करेगा, और यूज करते करते वाई के वर्कर को लॉस हुआ पे 20 लाख दो बोल रहा. द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस डज नॉट सजेस्ट दैट मिस्टर एक्स इज लाइबल टू पे. नोटिस जितनी की देता वो भी इन्वेस्टिगेट करेगा ना एक्स, although the needs to be investigated and confirm. Understanding? तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि अच्छा मशीन का कारण लॉस हुआ या ये वही मेरे को झूठा क्लेम डाल दे रहा, ऐसी बोल दे रहा, as whether the damage arose due to defect of the machine or it due to negligence while operation in the machine. तो मशीन के कारण ही हुआ या ये वर्कर केयरलेस था, whatever is there. Although the receipt of the notice results into event which require recognition of contingent liability. तो ये contingent liability की वजह से दिखाना है नोटिस. नोटिस आने से लाइबिलिटी तो नहीं बनी, बट पॉसिबल ऑब्लिगेशन. अंडरस्टैंडिंग? कि बन सकता, देखेंगे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे मशीन कारण हुआ किसी कारण हुआ तो ये मेरी लाइबिलिटी बन सकती है. पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, बिकॉज मैंने मशीन दिया था, मैं बोला था इसको जो भी हुआ ऐसे होने के कारण मैं लॉस दूंगा, ऐसा. सिंस देयर इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन. क्लियर गाइस? दैट कैन ओनली बी कंफर्म इन फ्यूचर. फ्यूचर मतलब पूरी जानकारी इन्वेस्टिगेशन करने से. बट यू सी अनदर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम मिस्टर ए बी सेल्स कार टू इट्स कस्टमर, वन ऑफ द कार कॉट फायर, एक कार में आग लग गई ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द faulty product during the test drive by one of the customer. तो अब मैं पे गलती किसकी है, मैंने ये ए बी मिस्टर ए बी जो भी है ना उनकी गलती है, बिकॉज वो कुछ कार ही गलत दे दी है और उसके कारण लॉस हो गया, आग पकड़ ली कार. अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे कंफर्म किसका गलती है, ए बी की गलती है, तो दिस इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. अंडरस्टैंडिंग? अब द कस्टमर इज फाइल्ड अ कोर्ट सीकिंग क्लेम ऑफ 50 लाख. कस्टमर 50 लाख बोल रहा, दे देते 50 लाख. कस्टमर 1 करोड़ बोलता, 2 करोड़ बोलता, अमाउंट तो सही बोलना चाहिए, गलती है मान लिए, तो दिस इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. बट अमाउंट में अनसर्टेनिटी है, अमाउंट में अनसर्टेनिटी और एस्टिमेट यू कांट में व्हाटएवर इज दैट विल बिकम योर कंटीजेंट लायबिलिटी. सो मिस्टर ए बी एक्नॉलेजेस दैट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब हम देने रेडी है, बट पैसा करेक्ट बोलो. इट इज नॉट सर्टेन दैट वेदर ही इज एक्सपेक्टेड टू पे फॉर एनी डैमेजेस. द फाइनल आउटकम will only be known during the court proceeding. कितना पे करना क्या जो भी है, अब जजमेंट के पीछे हम लड़ लेके मालूम कर लेते हैं जो भी है. क्लियर गाइस? सो वी हैव टू पार्ट्स हियर, पॉसिबल, प्रेजेंट. कुछ चीज़ें होने से पता होती है कि अपनी गलती है, बट पैसा कितना देना है एस्टिमेट नहीं कर सकते, दैट विल बिकम कंटीजेंट लायबिलिटी. बट गलती है, एस्टिमेशन कर सकते, देन इट विल बी प्रोविजन गाइस. क्लियर? Contingent liability is possible obligation arising from the past event and may arise in future depending on occurrence or non-occurrence. Same definition बोल रहा फिर से यहाँ पे. Clear? But ये see, enterprises should not recognize contingent liability. तो accounting when we see ये भी recognize नहीं करना. Recognize मतलब entry या पास नहीं होती in balance sheet. However, यहाँ see required to disclose to notes to account. Disclosure requirement है. वो कहानी लिखो नोट्स के अंदर, यू राइट एवरीथिंग कि ऐसा हुआ तो हम लड़ रहे, व्हाट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो भी है कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट है, यू रिकॉर्ड अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज इम्पोर्टिंग आइटम इज रिमोट.
रिमोट मतलब बहुत ही छोटे, अब देखो कहानी तब कब नहीं लिखना मालूम, कंटीजेंट लायबिलिटी है बट मिनिमल अमाउंट का है, छोटा अमाउंट है, नॉट मटेरियल फॉर यूज है, मेटेरियल कॉन्सेप्ट के कारण नहीं है, मटेरियल उतना रिमोट उतना अमाउंट इज नॉट दैट मटेरियल, बहुत छोटा अमाउंट है, रिमोट मतलब बहुत छोटा अमाउंट है, डिस्क्लोजर भी जरूरत नहीं है, डिस्क्लोजर भी जरूरत नहीं है। तो एक बार व्हेन वी disclosure wise when we discuss, guys, give me a minute. Yeah guys, disclosing wise when we discuss contingent asset का, contingent asset का when we say disclosure wise, guys, need not to be रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी करने की जरूरत नहीं है, एंड नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। बट व्हाट वाज द पॉइंट, अप्रूविंग अथॉरिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, यहाँ पे भी क्या है, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर ही रिक्वायर्ड, रिकॉग्निशन है, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड व्हेन वी डिस्कस फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी। बोलो गाइस, सेम, नीड नॉट टू बी रिकॉग्नाइज मतलब एंट्रियां पास करने की जरूरत नहीं है, बट फोकस, स्टे फोकस हियर, disclosure should be made, disclosure is required, कहानी लिखो, but disclosure required में again I can take two parts, guys, disclosure is required, not remote, या one more option you can take, remote, remote का मतलब guys मटेरियल अमाउंट, उतना मटेरियल नहीं है, छोटा अमाउंट है, अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिमोट मतलब बड़ा अमाउंट है, जब बड़ा अमाउंट है तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, और जब रिमोट है मतलब छोटा अमाउंट है, नॉट रिक्वायर्ड। छोटे अमाउंट को क्या डिस्क्लोज करेंगे, रिमोट मतलब स्मॉल, आई कैन से इमटेरियल, आई कैन से इमटेरियल, अंडरस्टैंडिंग, immaterial, छोटा अमाउंट, आई कैन से वेरी मच नॉट दैट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, पूरा मेजोरिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिस्क्लोजर आया गाइस, क्लियर। तो डिस्क्लोजर वाइज वो तब तो नॉट रिपोर्ट है, तो नॉट रिमोट मतलब इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, दिस इज मटेरियल गाइस, दिस इज समथिंग मटेरियल रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग, तभी उसको रिकॉर्ड मतलब डिस्क्लोज करना, रिकॉर्ड नहीं डिस्क्लोज करना, क्लियर। दैट वाज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्क्लोजर गाइस, assets and contingent asset and contingent liability का, that there is unless possibility of outflow embodied economic benefit is remote, remote मतलब छोटा है तो डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं, क्लियर। सेम जो अभी मैं आपको डिस्कस करा ना अपने मटेरियल में वही दिया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज एन रिजल्ट ऑफ ऑब्लिगेटिंग इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या है, प्रोबेबल आउटफ्लो है क्या है, रिलायबल एस्टिमेट कर सकते, सी ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो है और एस्टिमेट कर सकते तो प्रोविजन, एस्टिमेट कर सकते तो प्रोविजन, एस्टिमेट नहीं कर सकते तो कंटीजेंट लायबिलिटी, और रिमोट नहीं है, रिमोट नहीं है मतलब मटेरियल है कंटीजेंट लायबिलिटी, रिमोट है इट इज वेरी मच क्या बोलते रिमोट इमटेरियल है, देन डू नथिंग, डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। सो व्हेन आई सी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल आउटफ्लो है, एस्टिमेट कर सकते तो प्रोविजन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, तो टू ना दोनों में तो कंटीजेंट लायबिलिटी बनता है नहीं, बट पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और आउटफ्लो क्या बोलते हैं रिमोट नहीं है, रिमोट नहीं है मतलब मटेरियल है, मटेरियल है तो डिस्क्लोजेस कंटीजेंट लायबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग गाइस, होप आई एम मेकिंग यू क्लियर, क्लियर। तो दैट वाज द चार्ट से समझा रहा मैं कब प्रोविजन बनना कब प्रोविजन नहीं बनना, और अपना भी याद कर लो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में दो पार्ट्स थे, आउटफ्लो और एस्टिमेट, एस्टिमेट कर सकते तो प्रोविजन, एस्टिमेट नहीं कर सकते प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। सो सी यार एक बार वही बोल रहा हूँ,
कंटीजेंट लाइबिलिटी जैसे कि असेट कंटिन्यूसली असेस हो रहा था, वैसे लाइबिलिटी विल आल्सो गेट कंटिन्यूसली असेस, और जब भी प्रोबेबल हुआ कि अभी ये लाइबिलिटी बनना ऊपर चले आता डिस्क्लोजर से, नहीं बनना तो वहाँ से भी हट जाता. क्लियर. So if it is become probable that outflow of future economic benefit will required for an item previously dealt with in contingent liability, provision is recognized. तो जैसा हो गया provision बना देते बोल रहा हूँ. See here, distinction between contingent liability and liability. Contingent liability और liability के differences. Liability something which is very much sure कि देना है possible, तो present obligation है और पक्का पैसा देना ही है. But कंटीजेंट लायबिलिटी में अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कैच कर रहा. वही देखो, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी इज जनरली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. जजमेंट. तो लायबिलिटी इज डिफाइंड प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी of an enterprises which arises from the past event. The settlement of liability result in outflow of enterprise resources embodied economic benefit. तो कुछ बाहर जाता है लायबिलिटी को सेटल करने, पैसा जा सकता, असेट जा सकता, कुछ भी जा सकता. बट कंटीजेंट लायबिलिटी either outflow of resources settled the obligation is not probable, uncertainty है, not probable, or the amount expected to the pre liability cannot be measured with sufficient reliability. वो तो प्रोबेबल नहीं है, या वो प्रोबेबल है कि देना है बट कितना देना और एस्टिमेट नहीं कर सकते, देन इट इज कंटीजेंट लायबिलिटी. एग्जांपल there are is you can see this is something we already discussed. Contingent liability and provision के बारे में भी differences. So I told you provision, when you see this is present obligation, estimate can be made, but present obligation you have possible obligation, outflow नहीं मालूम, estimate नहीं कर सकते, then it will become contingent liability. But provision is something, एक second I am repeating this once again, provision is something present obligation and estimation can be made, but contingent liability is something प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या पॉसिबल ऑब्लिगेशन एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, या आउटफ्लो भी क्लियर नहीं है, ये सब केसेस के कारण इट कैन बिकम कंटीजेंट. सो अभी ये डिफरेंसेस विल आल्सो स्पीक द सेम जो अपन डिस्कस करें कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एस्टिमेशन, वो सब 4 पॉइंट्स को ही बोलते हैं. सी हियर, प्रोविजन इज अ present liability of uncertain amount which can be measured reliable by using substantial degree of estimation. यहाँ पे estimation कर सकते हैं, वो भी प्रेजेंट लायबिलिटी ही है. बट ये देखो पॉसिबल रह सकता, पॉसिबल का पूरा डेफिनेशन छाप दिया. और देखो प्रोविजन मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया, इसको रिकॉर्ड कर सकते, रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करता, बट इट फेल्स बिकॉज अमाउंट कुछ नहीं है, रिकग्नाइज करने का क्राइटेरिया भी मीट नहीं करता बोल रहा. अब और प्रोविजन कब रिकग्नाइज करते हैं, एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. देखो क्या लिखते, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहना, और क्या बोल रहा, एस्टिमेशन कर सकते, दोनों रहना. बट यहाँ पे इट इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट डू नॉट मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया बिकॉज इधर कहीं को अमाउंट नहीं मालूम, प्रोबेबल जो प्रोबेबल सेटलमेंट होना ना वो अमाउंट नहीं मालूम, और एस्टिमेशन भी नहीं कर सकते. तो अपना पार्ट 2 ऑफ डेफिनेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के 2 पार्ट समझा रहा हूँ. बट यहाँ पे 2 पार्ट में से प्रेजेंट है और मेन पॉइंट एस्टिमेशन कर सकते, दैट विल बिकम प्रोविजन. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो. एक बार फिर से मैं आपको बोल देता बेटर, ये व्हेन आई सी दिस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का पार्ट गाइस, फिर से बोल रहा एक बार, स्टे फोकस हियर. सो कंटीजेंट लायबिलिटी इज समथिंग व्हिच हैज पार्ट ए एंड पार्ट बी व्हिच यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन. बट पार्ट बी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में 2 पार्ट्स थे, याद करो, ये अमाउंट नहीं मालूम और एस्टिमेशन नहीं कर सकते. बट ये दोनों में से एस्टिमेशन कर सकते बोलकर आ गया ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एस्टिमेशन कर सकते, इट विल बिकम प्रोविजन. इतना ही डिफरेंस है, वही यहाँ पे समझाया उन्होंने बॉक्स के अंदर. क्लियर. द लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द प्रोबेबल ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द एप्लीकेशन रिजल्ट. यहाँ पे आउटफ्लो होता, ऑब्वियस है, यहाँ पे भी आउटफ्लो होता, बट कंटिजेंसी आउटफ्लो में कब होता कब नहीं होता. क्लियर. That was the differences between contingent asset and contingent liability and provision. So I think we discuss elaborately these 2 words, contingent asset and contingent liability. But yeah, again आपको फिर से आएगा at the inter and the final level. So you make sure कि सिर्फ सी डिस्कशन फर्स्ट टाइम कर रहे बोल के लेक्चर थोड़ा लंबा करा, और हो सके उतना अपन टाइम स्पेंड करें हर वर्ड पे. बट क्रक्स पूरे देखे ना, कंटीजेंट असेट्स का पॉसिबल असेट है, फ्यूचर इवेंट, ये सब पे डिपेंड है. और लायबिलिटी के अंदर सेम पॉसिबल भी है, बट प्रेजेंट का एक पार्ट एडिशन आता, प्रेजेंट पे डिपेंड्स आउटफ्लो और एस्टिमेशन पे. अगर एस्टिमेशन क्लिक हो गया देन इट विल बी योर प्रोविजन. दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ योर यूनिट. क्लियर गाइस. दैट वाज योर कंटीजेंट असेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी. क्लियर. या गाइस, so now the next unit, accounting policies.
So already we discussed the meaning of accounting policy when if you remember in the unit 2 key accounting policy क्या है, that 5 conditions wherever alternative exists. Accounting principles and policy as of now you can take it same, but whatever whenever we select any kind of accounting policy, कैसे लेना है, our selection should be based on these 3 things guys. Our accounting policy should be selected by keeping in the mind called something called prudence. अंडरस्टैंडिंग. तो प्रूडेंस का मतलब है ना फ्यूचर लॉसेस रिकॉर्ड करना एंड फ्यूचर गेन शुड नॉट रिकॉर्ड. तो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी प्रूडेंस को कंप्लाई करना. नथिंग अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी ऐसी नहीं रहने की फ्यूचर लॉसेस रिकॉर्ड नहीं कर सक रहे या फ्यूचर इनकम रिकॉर्ड कर दे रहे. इट शुड नॉट वायलेट द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और सब्सटेंस और फॉर्म. याद है सब्सटेंस और फॉर्म ये सब डिस्कस करे सो गाइस जस्ट आई एम कीपिंग देम इन द ट्रैक नाउ. सब्सटेंस और फॉर्म, लीगलिटी वर्सेस रियलिटी. वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल याद है जहाँ पे की एंड ऑल सब दे दिया था, वो की लॉकर पैसे सब हो गए थे, बस खाली रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था, लीगली नेम चेंज करना पेंडिंग था, खाली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पेंडिंग था. तो बिल्डिंग कौन रिकॉर्ड करता था, जिसका पूरा कंट्रोल आ गया था. लीगल ओनर इवन दो लीगली उसका नाम है उन्होंने रिकॉर्ड नहीं कर रहा था. दैट वाज सब्सटेंस और फॉर्म. तो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज सब्सटेंस और फॉर्म अप्लाई करना और मेंटालिटी कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना. अंडरस्टैंडिंग. सो आवर अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी बेस्ड ऑन दिस 3 थिंग्स बोल के चैप्टर बोलना चाह रहा था बस. एंड व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी अपन ऑलरेडी पढ़े थे. दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफर टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स. अपन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पढ़ ले कहते हैं ना, मीनिंग जहाँ पे अल्टरनेटिव है वो 5 कंडीशन मीट होकर वैसे प्रिंसिपल्स लेना अपन. एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसीज क्या है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो भी उनको अप्लाई करना एप्लीकेशन हियर refers to the specific accounting principle and methods of applying these principles. Understanding. तो अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अपन पढ़ के आए थे ना अल्टरनेटिव एग्जिस्ट में, उनको सेलेक्ट करना एंड अप्लाई स्पेसिफिक सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन इज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज. क्लियर. नाउ व्हेन वी सी ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज है, बट ये मेन है जो आपको मैं डिस्कस कराना चाह रहा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. बाकी सब व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस गाइस, उतना कुछ वरी करने का पॉइंट नहीं है. तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी है इट शुड नॉट चेंज. तो कंसिस्टेंसी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, याद करो कि कन्वेंशन था कि हैव टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली. बट actually you can change accounting policies or not. Actually it is not possible to change, but only in given cases we can change. Only in actually 3 cases, but यहाँ पे 2 दे रहा वो 3 cases में you can change the accounting policies. So accounting policy generally you can't change other than these 3 cases guys. First one is required by statute, मतलब लॉ. रिक्वायर्ड बाई लॉ, जब भी लॉ चेंज हो गया, कुछ नया एक्ट आ गया, नया प्रोविजन आ गया, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, तो व्हेनेवर लॉ चेंज वी हैव टू चेंज. और कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अपन एक यूनिट में देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कैसे बनते. तो एक नया स्टैंडर्ड आ गया. स्टैंडर्ड्स इज समथिंग विच इज गिवन बाय अवर इंस्टीट्यूट. तो इंस्टीट्यूट जब भी कुछ स्टैंडर्ड्स देता है, उनको कंप्लाई करने के लिए कुछ चेंज करना पड़े तो वी कैन चेंज. तो फर्स्ट रीजन इज when accounting policy generally we can't change, but we can change whenever law change or required by law or required by standard. Another is change could be result in more appropriate presentation of financial statement, but generally we can't change it, but changes is allowed. अगर changes करने से financial statements और appropriately disclose कर सक रहे और real true and fair और अच्छे से दे सक रहे, तो change के कारण तुम्हारी accounting और बेहतर हो रही, then only we can change. 3 points: by law, by standard, or by changing. If presentation is getting better, for fair and better presentation you can change it. तो generally law और AS के कारण नहीं, तो थर्ड रीजन में लोग चेंज कर लेते हैं. वैसे ही it is dealing in helping us to get the fair and better presentation. That was your this unit guys accounting policies. तो just कब चेंज कर सकते, this is important. बाकी सभी डिस्कस कर लिए अपन, इसलिए I am not going through that. And based every accounting policy selection should be based on these 3 things which we already discussed. Clear. And all the accounting policies will get disclosed in your financial statement. सब policies disclose होते हैं guys कि क्या क्या policies follow कर रहे हैं ये unit. So I told you what is accounting standard, right? तो accounting standards are actually issued by our institute. तो institute कब देता, कब accounting standard यहाँ देखो deals with the issue of recognition of event and transaction. कैसे रिकॉर्ड करना. कुछ मार्केट में आग लगी, लाइक मार्केट में भी कंफ्यूजन चल रहा लोगों के अंदर कि ये ट्रांजेक्शन ऐसा हो तो कैसे करना, कोई अलग अलग नहीं करना, राइट? बिकॉज अलग अलग करो तो अगेन याद करो अपना डिस्कशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल उसके लिए चाहते हैं. दिस शुड बी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. तो स्टैंडर्ड चीज के लिए वी गॉट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो कभी भी नई चीज आई उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद हाउ टू रिकॉर्ड दोस थिंग्स और मेजर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, रिकॉर्ड एंड मेजर और इवेंट प्रेजेंटेशन ऑफ दोस इवेंट एंड इवेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसके लिए आ रहे हैं. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे, दिस इज द फ्लो. तो अपने आईसीआई के अंदर देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड. सिर्फ डिपार्टमेंट ये इस पे, बट द एक्सपर्ट्स विल सिट, दे विल डिस्कस, दे विल मेक द सी
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, मतलब किस टॉपिक पे बनाए, क्या ट्रांजेक्शन ऐसा मार्केट में है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब दे विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट कि कहाँ नीड है, नीड जैसा है दे विल डू एरिया। देन इसके बाद गाइस आफ्टर एरिया व्हेन यू सी कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, तो स्टडी ग्रुप करते आराम से, दे विल डिस्कस, सब डिस्कस करते, डिस्कस करने के बाद क्या हो रहा है गाइस, आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स, तो एक ड्राफ्ट बनाते, तो पहले आइडिया एरिया ढूंढते, फिर स्टडी स्टडी करते उन लोगों का डिटेलली, फिर एक ड्राफ्ट बनाते कि इसकी अकाउंटिंग ऐसा करेंगे, फिर इसको सर्कुलेट करते कि अब यही सबसे डिस्कस करते हैं, सर्टेन द व्यू ऑफ डिफरेंट बॉडी, सर्कुलेट किसको किसको करते हैं, बड़े बड़े लोगों को करते हैं, अलग अलग बॉडीज को देते हैं, एक्सपर्ट्स बॉडीज लाइक दे कैन गिव टू नेफ्रा फॉर यू सेबी, तो बड़े बड़े बॉडीज आरबीआई, तो ये बॉडीज को देते कि ये अकाउंटिंग को हम ऐसा ऐसा सोल्यूशन दे रहे, तो उनको सर्कुलेट करते हैं, उनकी भी व्यूज लेते, फिर उनके व्यूज के बाद फाइनलाइज करते एक्सपोजर ड्राफ्ट, समझ में आ रहा है, एक्सपोजर ड्राफ्ट ईडी, फिर कमेंट्रीज पे एक्सपोजर ड्राफ्ट देकर पब्लिक में इशू कर देते हैं, आफ्टर टेकिंग हायर डिपार्टमेंट्स के व्यूज चेंजेस करके पब्लिक में ड्राफ्ट एक्सपोजर ड्राफ्ट देते, एक्सपोजर ड्राफ्ट के बाद पब्लिक कमेंट्स को भी ओपन रखते हैं कि तुम्हारा व्यूज जो बोलो कुछ चेंजेस है तो, फिर कमेंट रिसीव फ्रॉम एक्सपोजर ड्राफ्ट, फिर मॉडिफाई कर देते वो ड्राफ्ट को कुछ भी कमेंट्स के हिसाब से, फिर इश्यू ऑफ एएस, फाइनली एएस बनता फिर। तो ऐसे ही पूरे एएस आए, पूरे इंडेस है जो अपन इंटर और फाइनल में पढ़ते हैं, खाली आइडिया दे रहा है अभी, तो इसलिए मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो दिस इज द फ्लो टू गेट द एएस, कैसे बनाते, क्यों बनाते, वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, सब नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ये आइडिया यू शुड नो अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एएस, बोल के हम लेटिंग यू नो। एएस कभी भी सी लॉ बन दो, स्टैंडर्ड बना दो, रूल्स बन दो, रेगुलेशन बन दो, तभी बनते हैं देयर इज नीड। तो फर्स्ट एरिया निकालते, फिर स्टडी करते, फिर एक ड्राफ्ट बना के बड़े लोगों को देते, फिर बड़े लोगों का व्यू लेकर पब्लिक में देते, फिर पब्लिक के कमेंट्स लेकर मॉडिफाई करके फाइनल एएस बनता। क्लियर? सो दिस वाज एएस यूनिट। तो बाय दिस आई थिंक दिस 6th यूनिट इज समथिंग जो वैल्यूएशन का है, जो अपन रिलेवेंट प्लेसेस पे सब डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए अभी इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बाकी सब चीज़ें भी ऑलरेडी डिस्कस गाइस। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज भी कवर्ड हो गए, एंड योर यूनिट फॉर कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आई थिंक ऑल द यूनिट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वी कंक्लूडेड। So this first chapter I had given you idea of accounting, why accounting is done, how accounting is done, तो उसका accounting process डिटेल भी डिस्कस इन सेकंड चैप्टर नाउ, बट फर्स्ट चैप्टर का पूरा बेस रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग क्यों कर रहे हैं, एंड इवन हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अपन डिस्कस करें, एंड इवन वी डिस्कस कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी, कब रिकॉर्ड करना, कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, कहाँ डिस्क्लोज करना, कुछ डिस्क्लोज नहीं करना, एंड एट द लास्ट पॉलिसीज कैसे किस बेसिस पे बनना और कब चेंजेस कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इन 3 केसेस, बाय लॉ, बाय स्टैंडर्ड, और लास्टली फॉर फेयर एंड बेटर प्रेजेंटेशन। दैट इज थोड़ा जेनरिक एरिया, ठीक है। एंड शनेट कैसे बनते, क्यों बनते, वी डिस्कस आते लास्ट यूनिट। दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क गाइस। So now I think we can conclude our first chapter theoretical framework guys. So I will see you in the next chapter accounting process in next lecture. So by this I think आपको पूरा flow समझ में आ गया, and I one more thing I request guys, I want to know your feedback because अभी chapter हो गया completely. I want to know from you कि कैसे जा रहा, how it is actually helping you or not, and how it is actually मतलब you can suggest me any changes if I had to follow like ये तरीका ऐसा है, वो तरीका, यू कैन लेट मी नो कि हाउ आई एम इट इज हेल्पिंग यू और नॉट, और यू कैन सजेस्ट मी एनी वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग इज, तो कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे में है, यू कैन लेट मी नो। सो जस्ट आई एम आस्किंग योर फीडबैक एट द एंड, सो यू कैन लीव दैट फीडबैक इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो टिल देन यू टेक केयर, एंड आई थिंक यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर फुल फ्लेज अभी थ्योरेटिकल कंप्लीटली वी डिस्कस विद ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स एंड सम्स देयर, जहाँ पे भी सम्स, ये फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर स्पेसिफिकली भी ज़्यादा सम्स नहीं है, बट अकाउंटिंग प्रोसेस में लेजर क्लासिफाइंग सब आता है, वहाँ पे एक एंट्री पास होती है, प्रैक्टिस होता बहुत होता, सो दैट विल डिस्कस इन कंप्लीटिंग सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर नाउ, यू कैन लीव द फीडबैक देयर एट द कमेंट सेक्शन, जो भी फीडबैक यू लेट मी नो एनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर मी, ठीक है। टिल देन यू टेक केयर, ओके, बाय।